या अली मदद मौला अली मदद। સોરી, હું 2 મિનિટ લેટ થઈ ગયો તો લિંકથી જોઈન કરી રહ્યો હતો, પણ લિંકથી જોઈન નથી થવરાતું આજે, તો રેગ્યુલર ફોનથી જોઈન કર્યું છે. ઇન્શાલ્લાહ બધું સારું થશે. આવી ગયા બધા? મ્યુટ કર્યા બધાને? जी जी હા, તો મેં રજા પર શરૂઆત કરીએ. जी बिस्मिल्लाह। આમીન. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર. યા અલી મદદ. मौला अली मदद। મૌલાના નામથી શરૂઆત કરીએ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. બેહદ કૃપાળુ અને બેહદ દયાળુ અલ્લાહના નામથી શરૂ કરું છું. સૌપ્રથમ અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તજા અલી સહી ખુદાવીન આલમીન દરી સલામત દાતાર સરકાર આકા નૂર મૌલાના શાહ કરીમ અલ હુસૈની હાજરી ઇમામ પર ઇશ્ક અને મોહબ્બત સાથે સલવાત પડીએ. અલ્લાहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद. करीम इलम ग्रुप, करीम नूर मोहम्मद मोमिन फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास. फ्राइडे आफ्टरनून इलम मिजालिस 10th January 2025. My ilam mijalis number 1282. My wide number 520. સૌપ્રથમ અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તજા અલી સહી ખુદાવીન આલમીન દડી સલામત દાતાર સરકાર આકા નૂર મૌલાના શાહ કરીમ અલ હુસૈની હાજરી ઇમામના લાખો લાખો શુક્રિયા અદા કરું છું. ફરી એકવાર મૌલાએ આ નાચીજને તમારી વચ્ચે આવી ઇલમ બોલવાનો મોકો આપ્યો. હાજરીન તમામ ઇલમ મિજલસના ભાઈ બહેનો, પાછળથી જે લોકો રેકોર્ડિંગ સાંભળશે તેઓ, અને આ ઇલમ મિજાલિસના અંદર જે કોઈ પણ ખિદમત કરે છે તે બધાનો ઘણો જ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તજા અલી સહી ખુદાવીન આલમીન દડી સલામત દાતાર સરકાર આકા નૂર મૌલાના શાહ કરીમ અલ હુસૈની હાજરી ઇમામ મહેરબાની કરમ બક્ષિશ ફરમાવી દયા કરી હાજરીન તમામ ઇલમ મિજલસના ભાઈ બહેનો અને જગતમાંના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોને, તમામ ખિદમતગારોને, આ અઠવાડિયા દરમિયાન જે લોકો ઇલમ મિજાલિસમાં હાજરી આપી, ફરમાન મુબારક અને ગિનાન મુબારક વાંચવા માટે વારા લીધા, ઇલમ મિજાલિસની ગોઠવણો કરી, ફરમાન મુબારક કલામ મુબારક યાદ કરીને બોલ્યા, અને જે લોકો આયોજો કરી, જે લોકોએ પીરસાની તસ્બી કાઢીને 40 દાણાનો સવાબ પોતાના દીન ભાઈઓને આપ્યો, તે દરેકના ને મૌલા મુર્તજા અલી સહી ખુદાવીન આલમીન મૌલા દરેકની સુખી સલામત ને આબાદ રાખે. आमीन મૌલા બધાની નેક ઉમેદો પૂરી કરે. आमीन મૌલા દરેકની ખિદમત કબૂલ કરે. आमीन ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપે. आमीन ખિદમત દરમિયાન કોઈ પરખ કે કસોટી ના નાખે. आमीन મૌલા ખિદમતનો બદલો બચ્ચાઓના ઈમાનની સલામતીમાં આપે. आमीन મૌલા વધારે ખિદમત આપે. आमीन વધારે ખિદમત કરવા માટે હિંમત, શક્તિ અને પ્રેરણા આપે. आमीन મૌલા દરેકને આ જન્મના અંદર જ પોતાના નૂરમાં એક કરી દે. आमीन કુલ રૂહાનીઓને મૌલા અસલ મુબારકમાં વાસલ કરે. आमीन તો ઇન્શાલ્લાહ આજે આપણે પહેલા પ્રસ્તાવના વાંચીશું, પછી જંગબારના ફરમાન મુબારક જે વંચાય છે એ આપણે વાંચીશું, અને અનંત અખાડાના 13 પાઠ આપણે રાગથી સાંભળીશું, અને તે પછી બેતુલ ખ્યાલના વાયદની સિરીઝ ચાલી રહી છે, એના અંદર આજે વાયદ નંબર 3 હશે, નક્શ અને પ્રમોશન માટે, અને પછી ઇન્શાલ્લાહ આપણે 40 મિનિટ ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન રાખીશું. આજે તમે તમારા ઇમામ પ્રત્યેની વફાદારી અને પ્રેમની પુનઃ સાબિતી આપવા અહીં એકઠા થયા છો. આ પ્રસંગે તમારી સાથે હોવાના કારણે અમારો આનંદ ઊંડો અને શુદ્ધ છે. અમારા સર્વે વિચારો, અમારી સર્વે આશાઓ અને અમારી સર્વે દુઆઓ તમારે માટે છે. તમારામાંના દરેકને પોતાના મઝહબનું ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ. આ જ્ઞાન તેમજ સમજ મેળવવામાં જો બીજાઓને સહાય કરે છે તેઓને, અને પોતાના મઝહબ વિશે માહિતી મેળવવાની જેઓએ નેમ રાખી છે તેઓને અમો અમારા ઉત્તમ પ્યાર ભર્યા
દુઆ આશીષો ફરમાવીએ છીએ. તમારો ઈશ્ક અને ઈમાન જોઈને અમે ઘણા રાજી થયા છીએ. અલ્લાહના નામથી શરૂ કરું છું એમ આપણે બોલીએ છીએ. અલ્લાહ કોણ છે? મૌલા મુર્તઝા અલી સહી અલ્લાહ છે. અલ્લાહ મેરિયા સલવાત પढ़ो. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदन व आल मोहम्मद. अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना धनी सलामत दातार सरकार આકા સુલતાન મોહમ્મદ શાહ ઇમામે ફરમાવ્યું, ઈમાન અમૂલ્ય વસ્તુ છે અને ધણીને પ્યારી છે. અમારા દાદા હજરત મૌલા મુર્તઝા અલીને મોહમ્મદ નુશેરી અલ્લાહ કહેતો હતો. તેને 70 વખત કતલ કરવામાં આવ્યો તો પણ તેણે અલી અલ્લાહ કહ્યા કર્યું. પછી હુકમ આવ્યો કે આ સાચો મોમન છે અને એની ઓલાદ પણ સચ્ચાઈ વાળી થશે. આ મોમન અને એની ઓલાદને કયામતમાં પૂછાણું નથી. આટલો દરજ્જો તેને તેના ઈમાનના અંગે મળ્યો હતો. જેનું ઈમાન ગયું તેનું બધું ગયું. જેનું ઈમાન સલામત રહ્યું તેનું સઘળું સલામત રહ્યું. માટે પોતાના ઈમાનમાં કદી ખલલ થવા દેશો નહીં. અલ્લાહ મેરા સલવાત પઢો. અલ્લાहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदन व आल मोहम्मद. सतगुरु कह रे सतगुर कह रे धर्म तो साचो ईमान नो ईमान साचो जान जे ईमान लावशे फरमान सु ते दास અમારા જાણ રે રે ભાઈ તે દાસ અમારા જાણ. કઈ જિંદા કાયમ પાયા શાહપીર પાયા. ए जी अली ते तो सही अल्लाह कहिए एमा ओछो नहीं रे नगार અમે એને માનીયો કશું એનું નામ છે જલન શાહુ આકાર છે તો રીખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા. है जिंदा कायम पाया शाहपीर पाया. या अली बिलुत्फिक अदरिकनी. ओ अली તમારી રહેમતથી અમારી મદદે પહોંચો. મૌલા મુર્તઝા અલીની મદદ આપણે માગીએ છીએ. મૌલા મુર્તઝા અલી કોણ છે? મૌલા મુર્તઝા અલી છે તે ઇલ્મના દરિયા છે. મૌલા મુર્તઝા અલી સહી અલ્લાહ છે. અલ્લાહ એટલે ખુદા. મુર્તઝા અલીએ ફરમાવ્યું છે કે જેણે પોતાને ઓળખ્યો તેણે જાણે કે ખુદાને ઓળખ્યો. હાજર ઇમામને ઓળખીને ઇબાદત કરે તેની જ ઇબાદત કબૂલ થાય, કામ આવે અને સઘળું સારું થાય. પોતાનો રૂહ અસલ મકાને પહોંચે તે સારું. તમારો રૂહ એક નદીની મિસાલ છે. અમે એક દરિયો છીએ. તમારા રૂહનો આખરનો છેડો દરિયામાં એટલે કે અમારા પોતામાં છે. હું ફરી એકવાર કોશિશ કરું છું લિંકથી જોડાવા માટે.
સોરી, હું લિંકથી જોઈન નથી થઈ રહ્યો, તો આ રેગ્યુલર ફોનથી જ જોઈન છે. તો અગર ખુદાના ખાસ્તા અમારી આ ફોનની લિંક કટ થઈ જાય તો પછી મને 5-10 સેકન્ડમાં જાણ કરી દેજો ફોન કરીને, એટલે ખબર પડે મને. યાલી મદદ કરીમભાઈ, હા બોલો. તમે લિંક પર આમાં જે દેખાઈ રહ્યા છો કે તમે લિંક પર તમારું દેખાઈ રહ્યું છે? ના ના, પણ મને નથી લિંક દેખાઈ રહી ને. જે લિંક હું જોઉં છું ઓલવેઝ કે કેટલી એટેન્ડન્સ છે ને કોણ લાઈન પર છે, એવું કાંઈ નથી બતાવી રહ્યું સ્ક્રીન પર. ઓહ અચ્છા, નહીં હા, એટલે આમાં અહીંયા એવું દેખાડી રહ્યા છે કે હા વાંધો નહીં, તો હું તમને કહી દઈશ અગર કોઈ એવું લાગશે તો. હા સહી છે. એ તો તમે લિંકથી જોઈન થયા છે એટલે તમને દેખાય છે કે હું લાઈન પર છું એમ. ના, એટલે તમે લિંક પરથી જોઈન થયેલા છે એવું દેખાય છે. વાંધો નહીં, ચલો ઠીક છે. ઓકે. તો આપણે જંગબારના ફરમાન મુબારક શા માટે વાંચી રહ્યા છે? તો એ ફરમાન મુબારક આપણે વાંચીશું. તો મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમને ગમ યાને દુઃખ અને મુશ્કેલી આવી પડે તો અમારા જંગબારના ફરમાન વાંચશો તો આસાની થશે અને તમારું દુઃખ જતું રહેશે. ખાના વદાન. તો આજે આપણે ઇન્શાલ્લાહ જંગબારનું ફરમાન મુબારક કલામે મુબીન 35મું ભાગ પહેલામાંથી બહુ નાનું ફરમાન મુબારક છે, આપણે વાંચીશું. અલ્લાહ મેરા સલવાત પઢો. અલ્લાहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद. કલામે ઇમામ મુબીન ભાગ પહેલો, ફરમાન મુબારક 35મું, જંગબાર, તારીખ 11/7/1899. અલી સહી અલ્લાહ ખુદાબિન હક મૌલાના ધણી સલામત દાતાર સરકાર આકા સુલતાન મોહમ્મદ શાહ ઇમામે ફરમાયું, જમાતને અમ્ર છે કે કોઈ પીરની માનતા અથવા ઝંડા પાટની સલામ ભરાવીને ઉતારવાનો હુકમ આપે. અમે જમાતને અમ્ર આપેલો છે, માટે જમાતની મરજી પડે ત્યારે રજા આપે. જમાતખાનું ખુદાનું ઘર છે. જમાતને અમારો હુકમ છે કે જમાત ઝંડા માનતા ઉતારે. અલ્લાહ મેરે સલવાત પઢો. અલ્લાहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद. તો જ્યારે હિન્દુસ્તાનના અંદર પીર મા બાપ આવ્યા, સૌથી પહેલા પીર સદગુરુ નૂર આવ્યા મિસરથી, હઝરત ઇમામ આકા મુસ્તનસિર બિલ્લાના વખતમાં. પછી શ્રી કાશમ શાહના વખતના અંદર પીર સમ્મદ સાહેબ અને શ્રી ઇસ્લામ શાહના વખતના અંદર પીર સદરદીન સાહેબ, પીર હસન કબીર સાહેબ. તો જ્યારે ઇમામ તરફથી, ઇમામના વતી પીરોના હાથ નીચે જ્યારે જમાત બૈયત કરતી હતી, ઇસ્માઇલી મઝહબના અંદર દાખલ થતી હતી, તો એક રેશમનો ધાગો બાંધવામાં આવતો હતો હાથ પર, અને એ બહુ પતલો હતો એકદમ, અને એને 24 કલાક હંમેશા પોતાની સાથે બાંધેલો રાખવો પડતો હતો, અને બહુ નાજુક હતો. તો ગુસલ કરતા કે કોઈ બી કામકાજ કરતા એ ધાગો તૂટી ના જાય એનું જમાત ધ્યાન રાખતી હતી. તો એ સામાન્ય એક રેશમનો ધાગો હતો, પણ જ્યારે ધાગો બાંધવામાં આવતો ત્યારે પીર મા બાપ જમાત પાસેથી કોલ લેતા હતા કે આ બૈયત તમે કદી પણ તોડશો નહીં અને હંમેશા મારી ફરમાબરદારીમાં, ઇમામની ફરમાબરદારીમાં રહેશો. તો એ મામૂલી ધાગો હતો, પણ એની સાથે પીર મા બાપની, ઇમામની દુઆઓ હતી, અને એક વચન આપેલું છે ઇમામને અને પીરને. એ સતત એ ધાગાને જોઈને જમાતને યાદ રહેતું હતું. તો ધાગો, જાહેરમાં ધાગો ના તૂટે એ ખ્યાલ સાથે એ ખ્યાલ બંધાયેલો હતો કે ઇમામની બૈયત, ઇમામની ફરમાબરદારી, પીરની ફરમાબરદારી બૈયતમાંથી બહાર નથી જવાનું. તો એનો આશય એ હતો. એ ધાગો જોઈને યાદ આવે કે આપણે મૌલાને કોલ આપ્યો છે, બૈયત કરી છે, અને આપણે ફરમાબરદાર રહેવું જોઈએ. તો આ જે જંગબાર આફ્રિકાનું ફરમાન મુબારક છે, તો ત્યાં જમાતના અંદર હોઈ શકે છે કે લોકો જમાતખાનાના બહાર જે આપણા પુઠીઓના પીરને, જે પીર સદગુરુ નૂર છે, પીર સદરદીન સાહેબ છે, પીર હસન કબીરદીન સાહેબ છે, એ આપણા ઇસ્માઇલી મઝહબના પુઠીઓના પીરને પણ બહાર જે લોકો જમાતખાનાના બહાર જે બધી દરગાહો છે અને બીજા મુસલમાન આપણા ભાઈ બહેનો છે, એ લોકો જેમને પીર કહે છે,
ત્યાં જઈને આપણા જમાતવાળા જમાતખાનું મૂકીને ત્યાં માનતા માટે જતા હશે, તો એક તો કોઈ પીર નહીં માનતા, એટલે ઇસ્માઇલી મજહબ સિવાયના કોઈને પીર માનીને એની માનતા માનવી. અને ઝંડા, તો અહીંયા ઝંડાનો આ જે કલામે ઇમામ મુબીન ભાગ પહેલો જે મૌલાના ફરમાન મુબારકનું સંકલન કર્યું છે અને એને પ્રિન્ટ કર્યા છે, તો એ ઝંડાનો ઇન્ટુ બ્રેકેટ એની માયના આપી છે, અર્થ આપ્યો છે બાળ મોવાળા. તો બાળ એટલે એક નાનું બચ્ચું, મોઢું. તો એવી કોઈ જમાતખાનાના બહારની કોઈ માનતા હશે કે નાના બચ્ચાની, કે એના પર લોકો ઈમાન લાવીને એની માનતા હશે, તો આ બે ચીજો આના ફરમાન મુબારકના અંદર બતાવવામાં આવી છે કે ઇસ્માઇલી મજહબ સિવાયના કોઈ પીર અથવા બીજી કોઈ માનતા. તો એ માનતા હતા, તો મૌલાએ હુકમ કર્યો કે આ બધી માનતાઓ બંધ કરી દો, જમાતખાનામાં આવીને આ માનતાઓ તમે ગુના બક્ષામણી કરો અને આ માનતા તમે હવે માનો નહીં. તો મૌલાએ ફરમાવ્યું કે અમે હુકમ કર્યો છે જમાતને, અને મૌલા ઈચ્છે છે કે જમાતની મરજી પડે ત્યારે આ ચીજને અમલમાં લાવવામાં આવે. બરાબર. તો આપણા ઇસ્માઇલી મજહબના અંદર જે ઘટપાટનો દોરો બાંધવામાં આવે છે, તો એ આમ જોવા જોઈએ તો જાહેરી ચીજ છે, એને બાતુન સાથે રૂહ સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. પણ જ્યારે આપણા જમાતખાનું છોડીને બહાર દોરા ધાગા માનતા બધું કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું, એટલે આપણા જમાતખાનાના અંદર આ ઘટપાટના દોરાની સ્થાપના થઈ. તો એ ઘટપાટનો દોરો આપણે જમાતના લોકો બંધાવે છે, તો એનો મકસદ એ છે કે એ દોરો જોઈને આપણને યાદ આવે કે આપણે ઇમામની બૈયતના અંદર છીએ, આપણે મૌલાની ફરમાબરદારીના અંદર છીએ. અને આ દોરો જોઈને યાદ આવે કે જ્યારે અમે આ ઘટપાટનો દોરો મુખી સાહેબ સાથે બંધાવ્યો હતો, ત્યારે મુખી સાહેબે મૌલા વતી અમને દુઆઓ આપી હતી. તો એ ધ્યાનમાં રહે, એટલે આપણે કોઈને કોઈના રીતે ઇસ્માઇલી મજહબ સાથે, જમાતખાના સાથે, પીર અને ઇમામ સાથે આપણે કનેક્ટેડ રહીએ, અને આપણે આપણા મજહબને આપણા 24 કલાક દરમિયાન ભૂલી ના જઈએ. કોઈ પણ રીતે આપણે મૌલાને યાદ કરતા રહીએ અને મૌલાના ફરમાન બરદાર રહીએ. ફરમાન મુબારકને યાદ કરીએ, ઇસ્મે આઝમનો બોલ યાદ કરીએ, યા અલી યા મોહમ્મદ યા અલ્લાહ, પાક ઇમામોનો નામ યાદ કરીએ. એ રીતે આપણે મૌલા સાથે હંમેશા કનેક્ટેડ રહીએ. તો એનો મકસદ એ છે. હવે આપણે પીરસાની તસબીહ શા માટે પડીએ છીએ, અને એના અંદર 101 દાણાની તસબીહ પડવી જોઈએ, એના અંદરથી 40 દાણાનો સવાબ આપણા દીનભાઈઓને અર્પણ કરવો જોઈએ. તો એના માટે મૌલાએ શું ફરમાન મુબારક ફરમાવ્યું છે? તો અલ્લાહ મેરા સલવાત પડો. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદન વ આલે મુહમ્મદ. અલી સહી અલ્લાહ ખુદાબિન હક મૌલાના ધણી સલામત દાતાર સરકાર શાહ હસન અલી શાહ ઇમામે ફરમાવ્યું, ખુદાવંદે ફરમાવ્યું કે તમે જમાતખાનામાં આવી અલી અલ્લાહ બોલો છો ત્યારે અપરંપાર સ્વાબ થાય છે, પણ જ્યારે તમે અલી સહી અલ્લાહ બોલો છો ત્યારે તેનો સવાબ એટલો થાય છે કે અરસે અઝીમ સુધી પહોંચે છે. એ જ પ્રમાણે પીરશાના નામની તસબીહ કાઢીને તેના 40 દાણાનો સવાબ તમારા દીન ભાઈઓને અર્પણ કરો તો તેનો તમને દીન અને દુનિયામાં બેશુમાર સવાબ મળે. જે કોઈ એક વખત પીરશાનું નામ લે તો તેનો સવાબ દુનિયા આખીના હીરા, માણેક અને મોતીના ભંડારથી પણ વધારે છે. અલ્લાહ મેરા સલવાત પડો. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદન વ આલે મુહમ્મદ. તો હમણાં આપણે જે 40 દિવસની નિયત કરી છે, તો જંગબારના ફરમાન મુબારક શા માટે આપણે વાંચીએ છીએ, પીરસાની તસબીહ શા માટે પડીએ છીએ, અને અનંત અખાડાના પાઠ આપણે પડીએ છીએ પીર હસન કબીરદીન મા બાપના. તો એક જગ્યાએ મુખી સાહેબે આ કાંબડિયા સાહેબના ઘરના અંદર જવાન છોકરો ગુજરી ગયો, અને મુખેણી માં કે કાંબડિયાની માનું દુઃખ દૂર નહોતું થતું, ત્યારે મૌલાએ ફરમાવ્યું હતું કે તમે 40 દિવસ સુધી અનંત અખાડા પડો. 40 દિવસના અંદર અનંત અખાડો 500 પાઠ છે પૂરા કરો, તો ઇન્શાલ્લાહ તમારી મુશ્કેલી દૂર થઈ જશે. તો આપણે એના માટે પડી રહ્યા છે. બરાબર. તો આજે આપણે ઇન્શાલ્લાહ અનંત અખાડાના 13 પાઠ પડીશું, 118 થી લઈને 130 સુધી.
आशा जी खरी रचना खरा खरी राखो साचे मार्गे चालो जी शाह पीर बेई एक करी जानो तो करणी शाहजी कमाई हरि अनंतया हरि अनंत जो स्वामी शयनंत जो अंत तू ही जाने आशा जी तम कारण में अवतार ज लीधा छेली संद माहे जानो जी छेली वेळा माहे चेतीने चालो तो पहुँचो सरग द्वार हरि अनंतया हरि अनंत जो स्वामी शयनंत जो अंत तू ही जाने जी आशा जी अमे उणिया चारी बहु घर पाम्या घर दिठे घर आव्या जी तप विना कोई मार्ग न पोता कहे पीर हसन कबीर दिन साच हरि अनंतया हरि अनंत जो स्वामी शयनंत जो अंत तू ही जाने जी आशा जी तिलय अहंकार गणुज कीधा ते लोढानी भीत जी ત્યારે આગળ એટલું નહીં ચાલે જે કીધી લોઢાની ભીત હરિ અનંતયા હરિ અનંત જો स्वामी शयनंत जो अंत तू ही जाने जी आशा जी हम कारण शाह जी इयाज बैठा ते क्षमास
दीन जी। अरज बंदगी गुरे ये विज की दी तब हुई शाहनी मेहरबानी। हरि अनंतया हरि अनंत जो सामी शायनंत जो अंत तू ही जाने जी। आशा जी के निमाई ने के नो बाप कुटुंब के नो नहीं चाले जी। उत्तम करणी जीवनी दीठी तब सो दीदा शाहजी दीदार। हरि अनंतया हरि अनंत जो सामी शायनंत जो अंत तू ही जाने जी। आशा जी अमे उणिया चारी बहु जीव कहिए अने कहिए तमारा दास जी। मेहर करी जब मोरे शाह जी दीधा दीधा तब दीदार। हरि अनंतया हरि अनंत जो सामी शायनंत जो अंत तू ही जाने जी। आशा जी आल अली पैगंबर चाली आविया आव्या ते नबी जीनी जोड़ जी। नबी थकी सर्वे आलज चाली रहे मराय शाह करीम। हरि अनंतया हरि अनंत जो सामी शायनंत जो अंत तू ही जाने जी। आशा जी दुनिया कारण शाह दीन ज कीधा ते कोई कोई जीव चेत्या जी। अब का बुला कोई ठाम न पहुँचे जासे ते नरग दुआर। हरि
अनंतया हरि अनंत जो स्वामी अनंत जो अंत तू ही जाने जी। आशा जी संसार सर्वे सृष्टि तमारी अने सर्वे मानखा जीव जी। दया करी तमे अमने तारो मौला सर्वे जीव तमारा हरि अनंतया अनंतया हरि अनंत जो स्वामी अनंत जो अंत तू ही जाने जी। आशा जी ते माहिती सत पंथ दीधा दीधा ते दीदार जी। सतपंथ माहे जे जीवन ही छे त्याते जाशे नरग दुआर हरि अनंतया अनंतया हरि अनंत जो स्वामी अनंत जो अंत तू ही जाने जी। आशा जी नाना मोटा सर्वे जीव तमारा अने सर्वे जीव तमारा कहिए जी। सहुना वरतो तमने जाणू सोही जाणू देव मौला हरि अनंतया अनंतया हरि अनंत जो स्वामी अनंत जो अंत तू ही जाने जी। आशा जी सर्ग मरत पैयार ज कहिए ते सर्वे जीव तमारा जी। सहुना वरतो तमने जाणू सोही जाणू देव मौला हरि अनंतया अनंतया हरि अनंत जो स्वामी अनंत जो अंत तू ही जाने जी। हाय जिंदा
कायम पाया शाहपीर पाया। તો હવે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બેતુ ખ્યાલના જે વાય સિરીઝ છે એની આ ત્રીજી વાય છે। તો પ્રમોશન અને નક્સ માટે જે ભાઈએ સવાલ પૂછેલા છે તો એની આપણે વાય કન્ટિન્યુ છે। તો આપણે કોશિશ કરીશું કે નક્સ અને પ્રમોશન માટે જે વાય થઈ રહી છે આજે પૂરી થાય, અથવા કદાચ પૂરી નહીં થઈ શકે તો એક બીજી વાય થશે એના પછી નેક્સ્ટ ફ્રાઈડેના। अल्लाह मेरा सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदन व आले मोहम्मद। अली सही अल्लाह खुदाविन हक मौलाना धनी सलामत दातार सरकार आका नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजरी मां में फरमावे। જે પ્રમોશન અમે તમને આપવાના છીએ તે અહીં અમારો મિશનરી તમને આપશે। તો જે ભાઈ સવાલ પૂછ્યા છે એમની ઈચ્છા છે કે હું હિન્દી ઉર્દू બોલું, तो गुजराती वाचिस અને સાથે સાથે हिंदी उर्दू बोलवानी कोशिश करीश। तो मौला ने फरमाया कि जो प्रमोशन हम आपको देने जा रहे हैं वो यहाँ पे हमारी ओर से मिशनरी आपको देगा। જે प्रमोशन તમને મળવાનું છે તે બાબત વિશે સમજાવશે। जो प्रमोशन आपको मिलने वाला है उसके बारे में मिशनरी आपको समझाएंगे। અમો તમને તમારા પ્રમોશન માટે મુબારકી આપી છે। और मौला ने फरमाया कि हम आपको आपके प्रमोशन के लिए मुबारकबाद देते हैं અને आशा રાખીએ છીએ कि તમને मजबूत खुशी आपसे। और मौला ने फरमाया कि मैं आशा रखता हूँ कि ये प्रमोशन आपको मजबूत खुशी देगा। આ અદ્ભુત ક્ષણ વધારાની બંદગીની અને અમે તમને સફળતા માટે ખાસ દુઆ આશીષ ફરમાવીએ છીએ। तो मौला ने फरमाया कि ये अद्भुत यानी इंग्लिश में बोले तो बहुत वंडरफुल मोमेंट है, ये क्षण है। और वधारानी बंदगी नहीं, ज़्यादा बंदगी की ये जो वंडरफुल मोमेंट है। और हम आपको कामयाबी के लिए हमारे खास बेहतरीन दुआ आशीष फरमाते हैं। बाद में मौला ने फरमाया खाना वदान खाना वदान खाना वदान। तो ज़्यादातर जहाँ भी प्रमोशन की बात आती है तो मौला फरमाते हैं कि मिशनरी मेरी ओर से आपको प्रमोशन देंगे और आपको प्रमोशन के बारे में समझाएंगे। और मौला ने कामयाबी के लिए दुआ आशीष फरमाई और फरमाया कि ये प्रमोशन की आप प्रैक्टिस करोगे बराबर तो आपको मजबूत खुशी, तो कई जगह पे सिर्फ खुशी है और यहाँ पे मौला ने बताया कि मजबूत खुशी देगा। तो जैसे मौला ने हर दफ़ा फरमाया है कि बैतुल ख्याल के मेंबरों को जब पहली मर्तबा बोल देते हैं कि आप इसकी बाकायदा अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे तो हम जब दोबारा आएंगे और आपको नया बोल देंगे तो वो उसकी प्रैक्टिस आपको हमारी और करीब लाएगी, आप और नूर के नज़दीक हो पाओगे। तो यहाँ मौला ने प्रमोशन देते वक्त फरमाया कि इसकी प्रैक्टिस करने के बाद मौला ने फरमाया हम आशा उम्मीद रखते हैं कि आपको मजबूत खुशी होगी। और ये बहुत वंडरफुल मोमेंट है, अद्भुत क्षण गुजराती में बोलिए तो वधारानी बंदगी। तो बंदगी तो मौला ने 4 से 5 में ही फरमाया है बैतुल ख्याल की बंदगी को, लेकिन यहाँ मौला ने अल्फाज यूज किया है कि वधारानी बंदगी। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो पहली दफ़ा हम बोल लेते हैं और वहाँ से हमारी प्रैक्टिस शुरू होती है और हमने बाकायदा अच्छी तरह प्रैक्टिस की है और रेगुलर प्रैक्टिस की है, तो दोबारा जब मौला नया बोल देते हैं, प्रमोशन देते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हमको मौला की और करीब करेगी। तो उसके लिए वो ज़्यादा मजबूत कड़ी है, बहुत पहली कड़ी से, पहले बोल से शॉर्ट कड़ी है और उसकी प्रैक्टिस के हम मौला की नूर की और करीब पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए मौला ने यहाँ अल्फाज यूज़ किए कि ज़्यादा बंदगी की यहाँ वंडरफुल जो मोमेंट है तो उसमें आपकी
कामयाबी के लिए हम आपको दुआ आशीष फरमाते हैं। और मौला ने 3 मरतबा खाना बदान फरमाया है, खाना बदान, खाना बदान, खाना बदान। आगे मौला ने प्रमोशन के लिए दूसरे फरमान मुबारक में फरमाया कि मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, આજે અહીં તમારી સાથે હોવા બદલ હું અત્યંત ખુશ છું। આટલા બધા રૂહાની બાળકોને પ્રમોશન માટે આવેલા જોઈને અમુક ખુશી થયા છે। तो मौला ने फरमाया मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपके साथ होने की वजह से बहुत खुश हूँ। और इतनी बड़ी तादाद में रूहानी बच्चों को प्रमोशन के लिए आए हैं वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। હું તમારી પાસે આવવા ઈચ્છતો હતો કારણ કે હું તમને મદદ કરવા ઈચ્છું છું। मौला ने फरमाया कि मैं चाहता था कि मैं आपके पास आऊं। क्यों? क्योंकि मैं आपको मदद करना चाहता हूं। तो क्यों मौला को दिल में ऐसा हुआ कि मैं चाहता था कि मैं आपके पास आऊं? तो जाहिर में भी मौला पधारे और बातुन में तो मौला आते ही है। कब आते हैं कि हमने पहली दफ़ा जब बोल लिया और मौला को प्रॉमिस की थी और उस तरह हमने बाकायदा से अच्छी तरह बंदगी की, रेगुलर रहे, तो हमने मौला का दिल जीत लिया। और मौला ने फरमाया कि मैं चाहता था मैं आपके पास आऊं। और उसकी वजह मौला ने दी। क्यों मैं आपके पास आना चाहता था? क्योंकि मैं आपको मदद कर पाऊं। तो मौला क्या मदद करते हैं? तो जो मौला ने प्रॉमिस की थी, जो पहली मर्तबा मौला ने बोल दिया था कि आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे बैतुल ख्याल के बोल की, बैतुल ख्याल की बंदगी में, और रेगुलर रहोगे, तो मैं दोबारा आऊँगा और आपको एक नया बोल दूंगा। वो रस्सी छोटी होगी और उसकी प्रैक्टिस की वजह से आप अपने इमाम के और करीब आओगे। तो वो मौला मदद करना चाहते हैं। बराबर। જ્યારે તમે રૂહાની શોધ કરો છો ત્યારે તમે ખાસ કરીને મારી નજદીક हो છો। तो जब भी हम बैतुल ख्याल की बंदगी की प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान लगे कि नहीं लगे, लेकिन मौला को जो हमने प्रॉमिस किए कि 4 से 5 बैतुल ख्याल की बंदगी करेंगे, तो वो हम रूहानी खोज कर रहे हैं। और चाहे ध्यान लगे कि नहीं लगे, लेकिन अगर हम हॉनेस्टली और रेगुलर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम एक रूहानी खोज कर रहे हैं। और अगर हम इस तरह करते हैं तो मौला ने फरमाया कि आप लोग खास मेरे करीब होते हो। तो ये प्रैक्टिस के दरमियान हमको ईमान रखना चाहिए कि हम मौला के नूर के करीब है बातुन में। આ નવો બોલ જે આજે અમે તમને આપીશું તે તમને હજુ મારાથી વધુ નજદીક લાવશે। और मौला ने फरमाया कि प्रमोशन में कि नया बोल जो मैं आज आपको दूंगा, तो उसकी प्रैक्टिस से आप और भी हमारे ज्यादा करीब आ पाओगे। और यही फरमान मुबारक के अंदर मौला ने फरमाया, तो ये प्रमोशन के बारे में फरमान फरमाया और वहाँ नक्श का भी मौला ने जिक्र फरमाया। अमो तमो ने हमारा मुरीद यानी मिशनरी के बारे में फरमाया, मार्फत बोल और नक्श आपीशु। तो मौला ने फरमाया कि आज मैं मेरे मुरीद यानी मेरे मिशनरी के थ्रू, उनके द्वारा मैं आपको बोल और नक्श दूंगा। तो हमने आगे ये रिलेटेड फरमान मुबारक पढ़े नक्श, तो वापस हम उसको दोहराते हैं कि जब बहुत सदियों पहले जब इमाम बोल देते थे या इमाम की ओर से पीर भी देते थे, मिशनरी लोग भी गांव में आते थे, बोल देते थे, तो जमात जो पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो उनको समझो कि बोल दिया जाता था एज फॉर एग्जाम्पल या अली। तो या अली को कैसे लिखा जाए, जमात कई मेंबर ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको एक नक्श दिया जाता था कि जब भी आप या अली बोल का जिक्र करो तो सूरज या चांद या कोई भी फ्लावर, समझो कि गुलाब का फूल, ऐसा नक्श दिया जाता था। तो जब भी आप जिक्र करो या अली के नाम का, तो या अली का नाम का जिक्र करो बिगर जबान हिलाए,
और जो नक्श आपको दिया गया है सूरज चांद या कोई फूल का, वो आपके नज़र के सामने रखो। बाद में ऐसा भी हुआ कि मौला बोल देते थे और नक्श अरबिक में देते थे। जैसे या अली है तो या अली को अरबिक में कैसे लिखा जाता है। तो वहाँ थोड़े टाइम बाद वो चीज़ समझने में जमात को तकलीफ पड़ने लगी, क्योंकि जैसे अरबिक तो अरबी इस्माइली हम कहे तो सीरिया में ही है, ईरान में ताजिकिस्तान में फारसी पढ़ने वाले हैं, और इंडो पाक के अंदर गुजराती हिंदी उर्दू पढ़ने वाले। तो उसके बाद अभी हम आगे फरमान मुबारक पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको जानने में आएगी। तो आगे फरमान मुबारक आएंगे तो मौला ने बोल दिया और मौला ने अपनी उंगली मुबारक से वो बोल को कैसे लिखा जाता है वो बताया। लेकिन मौला ने वो बताया नहीं कि मैंने इंग्लिश में लिखा या अरबिक में लिखा। हो सकता है मौला ने अरबिक में लिखा होगा। लेकिन जब मौला हमको नक्श देते हैं अभी, तो जहाँ तक मेरा मानना है तो समझो कि या अली हमारा बोल है, तो जो भी हमारी मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज है, गुजराती, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबिक, इंग्लिश, उसमें वो बोल को कैसे लिखा जाता है वो हमारा नक्श होता है। तो यहाँ मौला ने फरमाया कि मेरी ओर से मेरा मिशनरी आपको बोल और नक्श देगा। બોલ અગત્યનો છે, નક્શ અગત્યનો નથી। નક્શ તમારી એકાગ્રતામાં મદદ કરવા માટે છે। और मौला ने फरमाया खाना बदान। तो मौला ने फरमाया कि बोल अहम है तो नक्श अहम नहीं है। नक्श उस लिए है क्योंकि अहमियत बोल की है, मौला के मुबारक पाक नाम की है। लेकिन हम आगे फरमान मुबारक आएंगे कि मौला नक्श क्यों देते हैं। तो बोल की अहमियत है, नक्श की अहमियत नहीं है। लेकिन नक्श उसके लिए है कि हम कंसंट्रेट करने को, एकाग्रचित बनने के लिए हमको आसानी हो जावे। कि शायद ऐसा हो सकता है कि सिर्फ हम बोल का जिक्र करें लेकिन हमारी आंखें बंद हो तो हमको सामने कुछ कंसंट्रेट करने के लिए कुछ दिखाई न जाए, तो शायद हमको मुश्किल हो सकती है। तो उसलिए मौला ने बोल और नक्श दिया दोनों। यानी हम बोल का जिक्र करें जबान हिलाए बिगर, और आंखें बंद करके हम वो बोल को किस तरह लिखा जाता है हमारी मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज के अंदर, गुजराती, हिंदी, उर्दू जो भी है, तो हमको एकाग्रचित होने में आसानी होवे। उसलिए मौला बोल के साथ नक्श भी देते हैं। तो यहाँ आगे फरमान मुबारक है। एक मिनट। मौला ने फरमाया कि आप बोलने तमारा पुरतो राखो। तो ये बोल को आप अपने तकी रखना, किसी को बताना मत कि आपका बोल क्या है। अने जो तमे बंदगी में सफल थशो। तो यहाँ मौला ने जो फरमान मुबारक फरमाए वो फर्स्ट टाइम जो बोल लेने आए थे उनको फरमाया, और वहाँ प्रमोशन नहीं दिया है। फर्स्ट टाइम मौला ने बोल मुबारक दिया और समझाया कि अगर आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे तो मैं दोबारा आऊँगा तो आपको प्रमोशन दूंगा, नया बोल दूंगा। तो यहाँ मौला ने फरमाया कि ये बोल को आप अपनी तकी रखना, किसी को बताना मत। जो तमे बंदगी में सफल थशो तो थोड़ा समय पछी अमो तमोने बीजो बोल आपीशु। अगर आप बंदगी में कामयाब हो गए तो थोड़े वक्त के बाद हम आपको दूसरा बोल देंगे। तो एक तो मौला फर्स्ट टाइम जब बोल देते हैं तो मौला ये भी फरमाते हैं कि आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने बताया रेगुलर करोगे, तो जब मैं दोबारा आऊँगा तब आपको नया बोल दूंगा, और उसकी प्रैक्टिस की वजह से और रस्सी शॉर्ट होगी, टूकी होगी, और आप अपने इमाम के नूर के और करीब आप आओगे। लेकिन यहाँ मौला ने फरमाया कि अगर आप कामयाब हो गए, ऐसा बताया। यहाँ मौला ने ऐसा नहीं बताया कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे और ऑनेस्टली, ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे, ऐसा नहीं बताया। यहाँ मौला ने कामयाबी की बात की कि पहली मर्तबा मौला ने बोल दिया और मौला ने फरमाया कि अगर आप बंदगी में
सफल थशो यानी कामयाब हो गए, तो यहाँ मौला ने बताया कि मैं दोबारा आऊंगा, ऐसा नहीं बताया। यहाँ मौला ने बताया कि थोड़े टाइम में मैं आऊंगा, शॉर्ट टाइम में आऊंगा। तो हो सकता है कि जाहिर में भी मौला शॉर्ट टाइम में आ सकते हैं, या ज्यादातर इसको हम मायना ये होती है कि बातुन में मौला हम कामयाब हो गए तो बहुत कम वक्त के अंदर मौला हमको नया बोल देंगे, प्रमोशन देंगे बातुन में। जो आप बंदगी में कामयाब हो गए तो थोड़े ही वक्त में हम आपको दूसरा बोल देंगे, जो आपको रूहानी ओर से हमारी और करीब करीब लाएगा। અને ઇન્શાઅલ્લાહ જેમ તમારું તો यहाँ तक ये फरमान मुबारक है। और आगे मौला ने फरमान मुबारक फरमाए, अमो तमो ने नक्श नहीं आपता। तो ये पहली मर्तबा जो बोल लेने आए हैं उनको मौला फरमाते हैं कि हम आपको नक्श नहीं देंगे, क्योंकि तमो पहलेથી તેનું લખાણ સૂત્ર જાણો છો। तो यहाँ जो पहली मर्तबा बोल लेने आए थे, मौला ने उनको बोल मुबारक दिया, लेकिन मौला ने फरमाया कि मैं आपको नक्श नहीं दूंगा। और उसकी मौला ने वजह बताई कि क्यों नहीं देता हूं, कि हम आपको नक्श नहीं देंगे क्योंकि आप पहले से ही उसको किस तरह लिखा जाए वो आप जानते हो। तो सारी जमात पढ़ी लिखी थी और मौला ने जो बोल मुबारक दिया, समझो कि या अली बोल दिया, तो मौला ने फरमाया कि मैं नक्श नहीं दूंगा क्योंकि आप अच्छी तरह सब जानते हो कि इस बोल को किस तरह लिखा जाता है। तो ये फरमान मुबारक से साबित होता है कि नक्श किसको कहते हैं, कि हमारे बोल को किस तरह लिखा जाता है उसको नक्श कहते हैं। राइट। तो हो सकता है जमात के अंदर जो सिर्फ गुजराती जानने वाले होंगे या उर्दू या हिंदी जानने वाले होंगे, तो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस जानने वाले हैं। तो कहने का मतलब अगर हम बोल के नक्श की बात करते हैं तो हमारी मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज कौन सी है जिसमें हम उसमें हम थोड़े आरामदायक है नक्श के बारे में, तो वो हमारा नक्श है। जैसे या अली है और हम सिर्फ गुजराती जानते हैं, या अली हमारा बोल है, तो या अली को गुजराती में कैसे लिखा जाता है, या हिंदी उर्दू जानने वाले, फारसी अरबिक इंग्लिश जानने वाले, वो बोल को उनकी लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, वो उनका नक्श है। तो मौला ने फरमाया कि मैं आपको नक्श नहीं दूंगा, और उसकी वजह बताई कि आप पहले से ही जानते हो कि वो किस तरह लिखा जाता है। तो वो जानता होगा જોઈએ। आप सब जानते ही हो, मौला ने फरमाया। और आपको मैं गुजराती में कहे तो તમે જાણતા હોવા જોઈએ કે યુ મસ્ટ નો, તમે આ બાબત જાણો છો। અમો તમોને ફરીથી અમારા ખાસ દુઆ આશીષો ફરમાવીએ છીએ અને અમો ઘણી જ આશા રાખીએ છીએ કે તમે સફળતા પ્રાપ્ત કરશો। और मौला ने फरमाया कि मैं अपनी खास उम्दा दुआ आशीष फरमाता हूँ और मैं बहुत ही उम्मीद रखता हूँ कि आप कामयाब हो। जो तमोने आ भव्य शक्तिशाળી રોશનીનો સ્પર્શ થશે तो તે તમને તમારા જીવનમાં અનંત રૂહાની સુખ આપશે। और अगर आप कामयाब हो गए और ये बहुत ही आला, वंडरफुल और बहुत ही ताकतवर रोशनी का आपको टच होगा, तो रोशनी के बारे में मौला ने अल्फाज यूज किए गुजराती में भव्य और शक्तिशाली। तो हम इसको अगर उर्दू इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बहुत ही महान और बहुत ही आला और शक्तिशाली, यानी बहुत ही जिसमें से हमको एनर्जी मिले, शक्ति मिले, ऐसी रोशनी का आपको स्पर्श होगा, टच होगा। तो ते तमने तमारा जीवन में अनंत रूहानी सुख आपसे। तो वो आपको आपकी जिंदगी के अंदर अनंत, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, लिमिट नहीं है, वो आपको रूहानी सुख मिलेगा। और बाद में मौला ने जमात को खाना वदान फरमाए। तो पहली मर्तबा जो बोल लेने आए थे तो वहाँ मौला ने ये फरमान मुबारक फरमाए
અમારા વહાલા રૂહાની બચ્ચાઓ, મેરે પ્યારે રૂહાની બચ્ચો, આજે જે ઇસ્મે આઝમ અમે તમને આપીશું, જે બોલ છે અને અમે તમને નક્શ આપીશું। तो जो भाई ने मुझे सवाल भेजा था तो वो लंदन का 95 का फरमान मुबारक था। वहाँ मौला ने फरमाया था कि हम अभी आपको पहली मर्तबा आओगे तो नक्श नहीं देंगे, लेकिन ये उसके बाद लगभग 22 साल के बाद मौला ने 16 साल के बाद मौला ने यहाँ पहली मर्तबा आए थे, उनको भी नक्श दिया। राइट, तो इमाम तो कुछ भी कर सकते हैं, बराबर। तो मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, આજે જે ઇસ્મે આઝમ અમને તમને આપીશું, જે બોલ છે અને અમે તમને નક્શ આપીશું। तो यहाँ पहली मर्तबा आए हुए लोगों की भी मौला ने नक्श की नवाजिश फरमाई। तो मौला ने फरमाया कि मैं आपको इस्मे आज़म दूंगा और जो आपका बोल होगा और मैं आपको नक्श भी दूंगा। અને નક્શ એક લખેલો શબ્દ છે और मौला ने फरमाया नक्श वो एक लिखा हुआ शब्द है, अल्फाज है, જે અમે તમને સમજાવશું। જો મૌલાને ફરમાયા કે મેં આપકો સમજાવુંગા, અને તે તમને એટલા માટે આપવામાં આવે છે કારણ કે કોઈક વખતે રૂહાની બચ્ચાઓને કંઈક ચીજ કે જે તેઓ ઓળખે છે તેના ઉપર એકાગ્રચિત બનવું ઘણું આસાન લાગે છે, અને તેના બદલે કે તેઓ ખાલી જગ્યામાં કોઈ સંદર્ભ વગર બેસી રહે। तो यहाँ मौला ने पहली मर्तबा आए हुए लोगों को फरमाया कि मैं आपको इसमें आज़म बोल दूंगा और नक्श भी दूंगा, और नक्श एक लिखा हुआ अल्फाज है, शब्द है, और मैं आपको समझाऊंगा। और बाद में मौला ने समझाया कि नक्श मैं आपको उसलिए दे रहा हूँ कि कई रूहानी बच्चे सिर्फ बोल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि बोल का जिक्र करते हैं, लेकिन उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कुछ लिखा हुआ चाहिए। तो हम आंखें बंद करते हैं और सिर्फ बोल होता है, नक्श नहीं होता है, तो हम या अली करते हैं। तो कई लोगों को ये थोड़ी मुश्किल लगता है कौन एकाग्रचित होने के लिए, तो उनको मौला ने फरमाया उनको कुछ लिखा हुआ शब्द चाहिए, तो उसलिए मौला ने नक्श दिया, और उसकी वजह से उनको आसानी होगी एकाग्रचित होने के लिए, क्योंकि उनको खाली जगह में ध्यान लगाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यानी उनको कुछ जब आंखें बंद करते हैं तो जबान हिलाए बगैर बोल का जिक्र करते हैं, लेकिन वो बोल को किस तरह लिखा जाता है वो उनको नक्श चाहिए। तो उसलिए मौला ने फरमाया कि मैं आपको नक्श भी दूंगा। और मौला ने आगे फरमाया कि मौला ने इसमें आज़म की नवाजिश की और अब अपनी उंगली मुबारक से नक्श को लिख के बताया। तो मौला ने बोल मुबारक की नवाजिश फरमाई, और मेरा ही मानना है कि जो बोल है उसी को किस तरह लिखा जाता है उसी को मौला नक्श फरमाते हैं, और वो बोल को किस तरह लिखा जाता है वो अपनी उंगली मुबारक से मौला ने लिख के बताया। क्योंकि आगे मौला ने फरमान मुबारक में, दूसरे फरमान मुबारक में फरमाया था कि मैं आपको नक्श नहीं दूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बोल को किस तरह लिखा जाता है। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आ रही है, और आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि मैं मेरी नॉर्मल स्पीड से बहुत स्लो बोल रहा हूँ आज, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी 2 फरामीन मुबारक है, तो इंशाल्लाह हम नक्श और प्रमोशन के बारे में फरामीन मुबारक को समझने की वाइज आज पूरी करेंगे। बाद में इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर के लिए अच्छा खासा टाइम रहेगा। तो जो पहली मर्तबा आए थे वहाँ फरमान मुबारक ने अंदर मौला ने नक्श और प्रमोशन दोनों की बात की। तो मौला ने फरमाया मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, જેમ તમે મોટા થતા જશો તેમ અમો તમોને પ્રમોશન આપશું। तो मौला ने फरमाया जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे हम आपको प्रमोशन देंगे। तो यहाँ जिस्मानी तौर से बड़े होने की बात नहीं है, तो रूहानियत तरीके बड़े होने की बात है। तो समझो कि अगर कोई हम लॉजिकली भी सोचे तो कोई 20 साल का लड़का पहली मर्तबा बोल लेता है तो 10 साल के बाद वो 30 साल का होता है। तो जिस्मानी तौर से उसकी उम्र के हिसाब से वो बड़ा हुआ है, तो उसको बोल नया बोल मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ बड़े होने की बात है कि पहली मर्तबा हमने बोल लिया और मौला को हमने जो प्रॉमिस की थी कि हम 4 से 5 के दौरान बैतुल खाल की बंदगी करेंगे,
और हम ऑनेस्टली बंदगी करेंगे और हम रेगुलर बंदगी करेंगे तो उसको बड़ा होने को कहते हैं। यानी हम रूहानियत में बड़े हुए, हमने मौला को जो प्रॉमिस किया था वो हमने पूरा किया, तो उसको मौला फरमाते हैं, ना कि जिस्मानी तौर से उम्र के हिसाब से बड़े होने की बात है। तो जो आप बड़े होते जाओगे तो हम आपको प्रमोशन देंगे। એટલે કે અમો तो यहाँ एक बात और भी पता चलती है कि एक से ज्यादा मर्तबा मौला हमको प्रमोशन दे सकते हैं, कि जो बड़े होते जाओगे त्यों त्यों हम आपको प्रमोशन देते जाएंगे। એટલે કે અમો તમોને एक नवो बोल, एक नवो नक्श આપીશું। और यहाँ मौला ने फरमाया कि अगर आप प्रैक्टिस बराबर करोगे तो आपको हम प्रमोशन देंगे, नक्श भी देंगे, नया बोल और नया नक्श देंगे। અને જેમ તમે મોટા થતા જશો તેમ તે કડી, તે રોશની સાથેની રૂહાની કડી નજદીક અને નજદીક આવશે। એટલા માટે કે આ જીવનના અંત સુધી જે કાંઈ બાકી રહેશે તે રૂહ જ છે, ત્યાં કાંઈ નથી પણ રૂહ અનંત છે। तो पूरे फरमान मुबारक के अंदर मौला ने फरमाया कि मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, आप जो बड़े होते जाओगे त्यों त्यों हम आपको प्रमोशन देंगे, एक नया बोल, एक नया नक्श देंगे। और जो आप बड़े होते जाओगे तो वो कड़ी यानी नया बोल, नया नक्श, वो आपको रोशनी के, रूहानी रोशनी के साथ की रूहानी कड़ी आपको हमारी और करीब लाएगी, यहाँ तक कि जिंदगी के अंत के दौरान। तो यहाँ जिंदगी का अंत ये है कि जो प्रैक्टिस करते हैं, और यहाँ जिंदगी का अंत ये बताया है, दो मायना है। एक तो हमारा जो जिस्मानी वजूद है, हमारी जिंदगी जो भी लिमिटेड है 60 ईयर, 70, 80 ईयर, तो वो भी एक अंत आता है। लेकिन इसकी ज्यादातर मायना ये है कि हम रूहानी रोशनी को देखते हैं, हम उसकी नवाजिश मौला हमारे पे फरमाते, वो रोशनी का हमको टच होता है, एहसास होता है, अनुभव होता है। वो हमारी बैतुल खाल की बंदी का जिंदगी का अंत है। तो जब वो एंड आएगा, यानी रोशनी हमको टच करेगी, उसके पहले ये सारी चीजें बनेगी कि हम बड़े होते जाएंगे रूहानी तौर से। हम जैसे बड़े होते जाएंगे यानी बाकायदा अच्छी तरह हम बैतुल खाल की बंदगी प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो मौला हमको प्रमोशन देगा, नया बोल, नया नक्श देगा। और उसकी प्रैक्टिस से हम मौला के नूर के और करीब आएंगे, और करीब आएंगे, और इतना करीब आएंगे कि वो एंड में क्या होगा कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ रूह ही बाकी रहेगा। तो वहां पे और कुछ नहीं है, मौला ने फरमाया सिर्फ रूह है और वो अनंत है। यानी हम अपने प्रैक्टिस करते 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 हमारे बद अमाल, दुनिया की मोहब्बत बढ़ाए, फिक्र, चिंता, डर, भय, जाहिरी ख्यालात, ये सारी चीजें हम दूर कर पाएंगे मौला की मेहरबानी से। और हम जो हमारा रूहानी वजूद है, जो हमारा असल वजूद है, जिस्मानी वजूद वो असल नहीं है, रूह अनंत है, वो हम रूहानी भान में आ जाएंगे। और ये हमारा जिस्म दुनिया में रहेगा, लेकिन हम हमारे रूहानी वजूद में रहते होंगे। तो वहां मौला ने फरमाया कि और कुछ नहीं, सिर्फ रूह है और रूह ही अनंत है। अभी और एक फरमान मुबारक है। तो फर्स्ट टाइम जो बोल के लिए आए थे वहां मौला ने नक्श का जिक्र किया। अमो तमोने खास दुआ आशीषो फरमावीए છીએ કે તે તમારા જીવન દરમિયાન હિંમતનું સ્ત્રોત રહે। तो मौला ने फरमाया कि मैं अपने खास उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाता हूँ कि ये बोल आप बाकायदा अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसमें से आपको रोशनी हासिल होगी, और वो रोशनी से आप जब तक जियोगे तब तक आपको उसमें से हिम्मत मिलती रहेगी। हिम्मत नु स्त्रोत यानी हिम्मत कहाँ से आती है वो आपको मिलती रहेगी। तो हिम्मत क्या है? हिम्मत बड़ी ईमान निशानी। तो हम बाकायदा अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे बैतुल खाल के बंदगी की, और रेगुलर रहेंगे तो हमको रूहानी रोशनी नसीब होगी। तो उससे हमको हिम्मत यानी हमारा ईमान मजबूत होता जाएगा। और मौला ने खाना वदान फरमाया
કે તમો તે રોશनीને ઓળખો અને વળગી રહો। तो मौला ने फरमाया कि वो रोशनी को आप पहचानो और उसको पकड़े रखो અને હું આશા રાખીએ છીએ કે તમો એ સમજશો કે એક વાર તે તમને સ્પર્શ કરશે। तो मौला चाहते और दुआ भी फरमाते कि आपको कम से कम एक मर्तबा ये रूहानी रोशनी आपको टच होवे। तो मौला ने कई जगह पे ये जुमे के अंदर फरमाया कि हम आपसे आप परिपूर्ण हो, कंप्लीट हो, वो आशा हम नहीं रखते, लेकिन आप अपनी इमाम को जो प्रॉमिस किया उसमें आप वफादार रहो और रेगुलर प्रैक्टिस करो। तो मैं आपको आप सबके लिए दुआ फरमाता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के दौरान कम से कम एक मर्तबा आपको ये रूहानी रोशनी टच हो। તમે તેને જાણી જશો અને તમે તેને ઇમામની રોશની સાથેની કડી અને તે કે જે કોઈ પણ કરતા વધારે ઉચ્ચ છે, તે કે જે સર્વથી પર છે, તેમાં પ્રવેશવાની એક કડી તરીકે રાખશો। तो यहाँ पे मौला ने फरमाया कि तमो ते रोशनी ने ओळखो। तो यहाँ मौला ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि वो रोशनी को आप पहचानो। और जब वापस दोबारा मौला ने फरमाया तो मौला ने फरमाया कि आप उसको जान जाओगे। तो कैसे जान जाएंगे? तो यहाँ पहचानने की भी बात है। और एक जगह पे मौला ने फरमाया कि आप जान जाओगे। तो पहचान के लिए तो ये इल्म है बराबर कि इल्म से तो रब पहचाना। तो रोशनी क्या है? हम जो रोशनी हासिल